बात कर लेते हैं। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026 का बजट पेश कर दिया है। इस बार के बजट में आर्थिक नीतियों के साथ साथ सेहत, टूरिज्म, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बदलाव का रास्ता भी खोला गया है। आइए जानते हैं बजट की बड़ी बातें जो हर शहरी के लिए मायने रखती हैं। I propose to launch a scheme to support states in establishing 5 regional medical hubs. Livestock contributes to close to 16% of farm income. इस बार के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को खास बढ़ावा मिला है। हील इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत भारत को ग्लोबल मेडिकल टूरिज्म हब बनाने की योजना है। इसमें 5 रीजनल हेल्थ सेंटर स्थापित होंगे जो प्राइवेट सेक्टर के साथ साझेदारी में काम करेंगे। ये कदम गुणवत्ता वाले इलाज को किफायती बनाएगा और विदेशी मरीजों को आकर्षित करेगा। To promote India as a hub for medical tourism services, I propose to launch a scheme to support states in establishing 5 regional medical hubs in partnership with the private sector. These hubs will serve as integrated healthcare complexes that combine medical, educational and research facilities. ये 5 रीजनल हब PPE यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित होंगे। इसका मकसद है कैपेसिटी बिल्डिंग, आसान वीजा प्रक्रिया और अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर इलाज उपलब्ध कराना, जिससे भारत में मेडिकल टूरिज्म को अब एक नई पहचान मिलेगी। यात्रियों की सुविधा और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन के लिए 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे। पहला कॉरिडोर है मुंबई पुणे। इसके अलावा दिल्ली वाराणसी और चेन्नई बेंगलुरु जैसे कॉरिडोर देश की आर्थिक कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे। इसे ग्रोथ कनेक्टर्स कहा गया है। In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. क्रिएटिव टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए सरकार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज मुंबई के माध्यम से AVGC कंटेंट हब बनाएगी। 15,000 सेकेंडरी स्कूल और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर्स लैब्स भी स्थापित होंगे। इससे एनिमेशन, गेमिंग और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में नई प्रतिभाएं तैयार होंगी। देश में वेटनरी प्रोफेशनल्स की संख्या बढ़ाने के लिए लोन लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम शुरू की जाएगी। इसके तहत प्राइवेट सेक्टर में वेटनरी कॉलेज, हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक लैब और ब्रीडिंग फैसिलिटीज स्थापित होंगी। पशुपालन और डेयरी सेक्टर को भी नई ताकत मिलेगी। Livestock contributes to close to 16% of farm income, including of poor and marginal households. To scale up availability of veterinary professionals by more than 20,000, I propose to roll out a loan-linked capital subsidy support scheme for establishment of veterinary and para-veterinary colleges, veterinary hospitals, diagnostic laboratories, and breeding facilities in private sector. Collaboration between Indian and foreign institutions will also be facilitated. महिलाओं को STEM फील्ड्स में अवसर देने के लिए हर जिले में महिला हॉस्टल बनाए जाएंगे। इससे उच्च गुणवत्ता की शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। ये कदम शिक्षा और लैंगिक समानता दोनों के लिए अहम माना जा रहा है। टूरिज्म को एम्प्लॉयमेंट लेड सेक्टर बनाने के लिए टॉप 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को स्टेट्स के साथ मिलकर डेवलप किया जाएगा। लगभग 10,000 गाइड्स का कौशल विकास किया जाएगा। टूरिज्म के लिए कुल 20,000 करोड़ का निवेश होगा। I also propose a pilot scheme for upskilling 10,000 guides in 20 iconic tourist sites through a standardized, high-quality 12-week training course in hybrid mode in collaboration with a Indian Institute of Management. A national destination digital knowledge grid will be established to digitally document all places of significance, cultural, spiritual and heritage. This initiative
will create a new ecosystem of jobs for local researchers, historians, content creators, and technology partners. India has the potential and opportunity to offer world-class trekking and hiking experience. We will develop ecologically sustainable mountain trails in Himachal Pradesh, Uttarakhand, and Jammu Kashmir. Also in Araku Valley in the Eastern Ghats and Podigai Malai in the Western Ghats. डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से टूरिज्म डेस्टिनेशन की जानकारी को नेशनल डिजिटल डेस्टिनेशन नॉलेज ग्रिड में शामिल किया जाएगा। ये प्लेटफॉर्म यात्रा, शिक्षा और रिसर्च के लिए डिजिटली उपलब्ध होगा, जिससे पर्यटन को नई दिशा मिलेगी। विश्व स्तरीय ट्रैकिंग और एडवेंचर टूरिज्म के लिए हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में सस्टेनेबल माउंटेन ट्रेल्स विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा अराकू वैली और पोथिगाई मलई जैसे क्षेत्र भी एडवेंचर टूरिज्म के लिए तैयार होंगे। इस यूनियन बजट ने ये साफ संदेश दिया है कि विकसित भारत सिर्फ आर्थिक विकास तक सीमित नहीं, बल्कि हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म में हर नागरिक को अवसर देने वाला है। हेल्थ केयर, हाई स्पीड रेल, महिला शिक्षा, एडवेंचर टूरिज्म और डिजिटल इनिशिएटिव्स, ये सभी कदम देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बजट की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस बजट में अगले साल 25 सालों का रोड मैप है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि रिफॉर्म एक्सप्रेस पर हिंदुस्तान अपनी यात्रा शुरू कर चुका है। सो दिस इज अ बजट the highlight of which is structural reforms, the highlight of which is the reforms driven by technology and also targeting future economic growth. And I'm glad that most of the new announcements made by the finance minister today are related to technology. अब आप उसमें biopharma is the most important announcement, 10,000 crore biopharma Shakti mission, biopharma Shakti scheme. Because our considered view across the world is that the next industrial revolution is going to be biotechnology driven, just as the last was IT driven. And we were among the first few countries to have rolled out a biotechnology policy, dedicated biotechnology policy called BioE3. And that also because of the futuristic view taken by the Prime Minister, that we were successful in doing so. और उसी के साथ ये मेल खाता है. We are already number 3 biomanufacturing hub in the Pacific, Indo-Pacific, and number 12 in the world. इंडिजिनस डिवाइसेस हमारे वैक्सीन्स कॉस्ट इफेक्टिव रेट पे बनने शुरू हुए, तो इससे इसको हमें बल मिलेगा। खासतौर से जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि जो बढ़ती हुई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, हमारे यहाँ लगभग 11 करोड़ डायबिटीज़ के मरीज़ हैं और हर साल लगभग 12 लाख कैंसर के नए मरीज़ पाए जाते हैं।